सादत खान साहब है, इनकलाब मिट्टी की। आप असलम करपुरी साहब है, हमारी कम्युनिटी के बहुत बड़े कैलीग्राफर हैं, यानी इनके टोकरे बनाए हुए जो पूरे हिंदुस्तान दुनिया में बाहर जाते हैं। जिसके बाद में ये शीरी बनती है, सहाबत एक अखबार निकलता है। उसके बाद हमारे ये एक दोस्त हैं, फिर हमारे डॉक्टर फेरोज शेख साहब पीछे की सब पे वो बैठे हैं, जिन्हें यहाँ बैठना चाहिए था बिलाशुबा, जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, एम ए खालिद साहब, हमारे डॉक्टर साहब मतलब ताई साहब, प्रोफेसर हैदर कर्रार, खलील अहमद साहब, ये सारे लोग, फारूक शेख साहब, ये सारे लोग वो हैं जो आज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब आपको सुनने के लिए आए हैं। तो ऐसे मौके पर मेरा ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन डेकोरम भी होता है, कुछ अपने फायदे भी होते हैं, कुछ आदाब भी होते हैं बैठने के, तो क्यों ना हम हमारी प्रिंसिपल से दरखास्त करें कि वो आए और इस्तेक़बालिया कलमात यानी वेलकम स्पीच आपके सामने पेश करें। Honorable Dr. Satyapal Singh Saab, Commissioner of Police, Mumbai, esteemed members of the management, respected judges, jury, dear friends, students, and everybody present here with us today, I welcome you all. In fact, this morning I was thinking that Hallmark has given us universal days, Father's Day, Mother's Day, Valentine's Day. 20th February is not marked as a hallmark day, but in the Burmani fraternity, it will be marked as a special day because Commissioner of Police has decided to come, meet us, open a dialogue, talk to us, interact with the students. So in our fraternity, it is definitely a hallmark day. Sir, thank you so much for being with us. Dr. Qasim Imam has very accurately said it's the topic that has interested him maximum. Respecting women's rights is respecting human rights. I'll just take half a second, mostly for my younger lot, my young friends who are present here, that women's rights have been neglected all along. Women have not been asking for the moon. What are women's rights? Very basic: right to security, right to dignity, right to making choices, right to education. So these are very basic rights. In spite of human rights having been accepted in 1948, as late as 1993, women's rights were not accepted even by the UN. And it was as late as 1993 when there was a debate, a dialogue established on the topic. So if the voices from the civic society are rising, asking for it, they need to be welcomed. I've heard a couple of the speakers. I think we need to have an orientation session on women's rights sometimes, and I'll need the help of my friends who are present here. Javed Anand, I'll need you. Aisha, I'll need you. Vajuddin, I'll need you. I'll need each one who's sitting here to have an orientation session with the youth to be able to clarify religious demands, spiritual demands, women's rights, human rights, fundamental rights. They're all independent entities. They can't be mixed one with another. I will not stand in between the audience and our esteemed guest, Dr. Satyapal Singh Saab. Most welcome on the mic. The Honorable Principal of this college, the esteemed members, the trustees of this college, Suhail Lokhandwala, jury members, judges, dear students, I don't know, Hindi अच्छी है कि अंग्रेजी अच्छी? वैसे भी मेरी अंग्रेजी को ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं कुछ सोच के आया नहीं मुझे क्या बोलना है, क्योंकि सुहेल लोखंडे ने मुझे बोला था कि आना है तो मैं आ गया। मुझे लगा था कि स्टूडेंट्स के साथ डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ का जो टॉपिक है रेस्पेक्ट द वीमेन, रेस्पेक्ट द वुमेन राइट्स। इफ यू वांट टू रेस्पेक्ट द वुमेन राइट्स, व्हिच मींस यू आर रेस्पेक्टिंग वुमेन। ये जो डिबेट है बड़ी रीसेंट डिबेट है।
ह्यूमन राइट्स की जो बात है ये भी बहुत रिसेंट है। जहां तक महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं के सम्मान की बात है, कम से कम अपने देश में उनका सम्मान होता रहा। बीच का कुछ समय आया, थोड़ा गड़बड़ हो गया। बाहर जो लोग आजकल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन देशों में अबाउट 100 ईयर्स बैक, 125 साल तक महिलाओं का वोटिंग का भी अधिकार नहीं था। तो उन लोगों को मानते नहीं थे कि उनको वोट डालने का अधिकार है या उनको पढ़ाई करने का अधिकार है। हमारे देश में भी धीरे धीरे जो अंधकार का टाइम था कि लड़कियों को पढ़ाना नहीं, तो ये समझ लीजिए लगभग 150 साल में दोबारा इस बात पर शुरुआत हुई। कई लोगों ने, महात्मा फुले का नाम आता है, सावित्रीबाई फुले का नाम आता है महाराष्ट्र में, उन्होंने सबसे पहले 1858 में सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। ऐसे नॉर्थ के अंदर शुरुआत हुई, जालंधर के अंदर शुरुआत की। महात्मा मुंशीराम नाम के एक वकील थे, उन्होंने शुरुआत किया। लड़कियों का सबसे पहला स्कूल उत्तर भारत में तब बना। और धीरे धीरे एक बार एक बहुत ही सीनियर लेडी वो बोल रही थी कि जब वो मुंबई यूनिवर्सिटी से सबसे पहले ग्रेजुएट थी और जब वो पास आउट हुई, तब तक मुंबई यूनिवर्सिटी के जो डिग्रियां थी वो केवल जेंट्स को मिलती थी। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज की गई, लड़की पास हो रही है, ग्रेजुएट हो रही है, तो इसको डिग्री देना है, तो उसको कैसे डिग्री दी जाए, वही बता रही थी। पहली फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ आई थिंक 1928 या ऐसा कुछ बता रहे थे, कुछ एग्जैक्टली 21 एग्जैक्टली साल मुझे याद नहीं है, कि सबसे पहले अपनी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उसमें अपने वाइस चांसलर साहब ने, उनको मालूम होगा कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कब हुई। तो वो मैं उन्हीं की लेक्चर सुन रहा था एक बार, कहीं 3-4 साल पहले, तो वो ऐसा बोल रही थी कि उनके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया कि महिलाओं को डिग्री दी जाए तो कैसे दी जाए। ये क्यों हुआ? और महिलाओं को हम लोगों ने, अगर अपने देश की संस्कृति देखा जाए, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घरों में महिलाओं का सत्कार होता हो, सम्मान होता हो, इज्जत होती हो, वहां कहते थे कि वहां देवता रहते। देवता का अर्थ ये नहीं है कि जो देवता बाबू का नाम देवता नहीं है। देवता का अर्थ यह है कि उनके उस घर के अंदर सब प्रकार की उत्तम सामग्री रहती है, सब साधन रहते हैं और वहां अच्छे बच्चे पैदा होते हैं। जिस समाज के अंदर, जिस परिवार के अंदर महिलाओं की इज्जत होती हो, वहां अच्छी संतान पैदा होती है। ऐसी अपनी संस्कृति कहती है। और संस्कृति में जिसके बच्चे अच्छे नहीं, लोग कहते हैं उसका जीना बेकार है। तो बच्चे अगर अच्छे चाहिए तो महिलाओं का सम्मान चाहिए, महिलाओं की इज्जत चाहिए। एक बार के फिलोसफर ने लिखा कि किसी भी समाज को, किसी भी देश को अगर ये पता करना हो कि उसमें वो समाज सुसंस्कृत है, समाज सिविलाइज है, समाज कल्चर्ड है, उसका एक ही टेस्ट है, the shortest test and the purest test, purest test and the shortest test। उनके हिसाब से क्या है कि उस समाज के अंदर महिलाएं सुशिक्षित हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं। जिस समाज के अंदर महिला सुशिक्षित है, जिस समाज के अंदर महिला सुरक्षित है, इसका मतलब समाज सुसंस्कृत है, सिविलाइज है, कल्चर है। जिस समाज के अंदर महिलाएं सुशिक्षित है और फिर महिलाएं सुरक्षित है, इसका मतलब वो गड़बड़ है। इसलिए मैं कई बार आप लोगों ने शायद पेपर में पढ़ा भी होगा, जब हम लोग मीडिया वाले, कई लोग आप में यहाँ बैठे भी हैं, जब मीडिया के सब लोग सवाल पूछते हैं कि भाई वो मीडिया महिलाओं के प्रति जो है अत्याचार बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब दिल्ली वाला जब केस हुआ, दिल्ली वाले केस के टाइम पर हमारे मुंबई शहर के अंदर महिलाओं के प्रति जो अपराध थे, जो गुनहगारी थी, वो कम थी। 2012 की बात कर रहा हूं मैं, एज कंपेयर टू 2011। लेकिन हम लोगों ने बार बार मुहिम चला कर रखा, तब से लगभग 2 महीने हो गए। हम लोगों ने बोला कि अगर महिलाओं के प्रति कोई छेड़छाड़ करता है, किसी लड़की को छेड़छाड़ करता है,
आपको मालूम है जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है, बहुत से अपराध जो है, बहुत से गुनहगार जो है रिपोर्ट नहीं होते। आदमी समाज में अपने घर में परिवार की इज्जत के लिए, लड़की अपनी इज्जत के लिए बहुत बार आदमी सोचता है, तो केस हो रहा है, छेड़छाड़ हो रही है, घटना घट रही है, लेकिन तब भी पुलिस को लोग रिपोर्ट नहीं करते। मैं नहीं कह सकता कितने % रिपोर्ट होते होंगे, 50% रिपोर्ट होते होंगे या उससे कम होते होंगे, ज्यादा हो गए, इसके बारे में इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि सारे केस 100% केस रजिस्टर्ड हो सकता है, 25% रिपोर्ट होते हो, 30-50% रिपोर्ट हो तो कैसे। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, जब से हमने मुहिम शुरू की मुंबई शहर में पिछले लगभग 2 महीने में, जो महिलाओं के प्रति जो केस थे, अपराध थे, एज कंपेयर टू 2012 अंदाजन 3 गुना केस बढ़ गए, 3 गुना रिपोर्टिंग बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि अपराध बढ़ गए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे, ऐसा नहीं है, अपराध होते थे पहले भी, लेकिन वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई। और हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने अपने पुलिस के अंदर बोला कि जब सब जगह जहां महिलाएं कांस्टेबल नहीं थी, महिला अधिकारी थी, महिला पोस्ट किए, उनके नंबर दिए, लोगों को हिम्मत दे रहे, उनको भरोसा दे रहे कि मुंबई पुलिस आपके साथ है, छिपाओ मत। आज जो छेड़छाड़ करने वाला जो व्यक्ति है, अगर हमने उसको रिपोर्ट दी कि आज हमने छिपा लिया, आज वो छेड़छाड़ करता है, कल को रेपिस्ट बन सकता, बलात्कारी भी हो सकता है। इसलिए ये जो बात है, जो प्रवृत्ति है, इसको जितना जल्दी दबाया जाएगा उतना समाज की हित में। तो ये हम मुहिम चला कर रखा है, और इसलिए उसका ये फायदा जो हो रहा है, मैं आपको जो बता रहा हूं, हम इस बात से चिंतित नहीं है। कल को पत्रकार हमसे पूछेंगे 2013 के लास्ट में कि साहब क्राइम तो 3 गुना बढ़ गया, इसलिए क्राइम बहुत बढ़ गया। मैं इस बात से कुछ चिंतित नहीं, क्योंकि मैं इसे मानता हूं कि क्राइम पहले भी होते थे, रिपोर्टिंग बढ़ गई है, और समाज के अंदर लोग रिपोर्टिंग बढ़ गई, महिलाओं में हिम्मत आ रही है। हम कह रहे हैं, हम महिलाओं को हिम्मत, हम उनको आश्वासन देने के लिए हैं कि हम आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं, किसी भी गुंडे बदमाश से घबराने की जरूरत नहीं, छिपाने की जरूरत नहीं। तो माँ बाप को बोल रहे हैं, जगह जगह 5 बड़े मिलावे हम लोगों ने, महिला मिलावे इसके अंदर, पुलिस के अंदर मुंबई शहर में हम लोगों ने किए हैं। अंदाज़ सभी जगह 1500 से 2000 तक महिलाएं उसमें आई हैं। सब जगह हम एक ही संदेश दे रहे हैं कि घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं, रिपोर्ट करना है, गुंडे बदमाश को छिपाना, 0 टॉलरेंस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, 0 टॉलरेंस होना चाहिए अगर कोई गुंडा बदमाश को गड़बड़ करता है। दुर्भाग्य की बात यह है, जहां हम लोग समाज का वो चाहते हैं हमको कोऑपरेशन मिले। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि 2011 के अंदर 219 एक केस ले रहा हूं, रेप केसेस, जो बलात्कार के केस हैं, 2011 में 219 केस रिपोर्ट हुए। कितने? 219। इस 219 के अंदर केवल मात्र 12 केस ऐसे हैं, कितने? ओनली 12, जो अनजान लोगों ने किए। कई केस ऐसे हैं खुद बाप बेटी के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात समाज में क्या हो सकती है? खुद अपने रिश्तेदार बलात्कार कर रहे हैं। कुछ लड़की को जो शादी का बहाना देकर के, झांसा देकर के मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला हूं, ये अराउंड, अगर मुझे डेटा एग्जैक्ट याद है, अराउंड 58 केस के जैसे कुछ केस है। ये 2011 की बात बता रहा हूं। 2012 में जैसे मैंने बताया कि दिल्ली का हम लोगों ने महिला मिलावे शुरू किए, उससे पहले कम थे, लेकिन 15 दिन में केस बढ़ गए। 231 केस रिपोर्ट हुए 2012, और 2012 में केवल मात्र 9 केसेस, 2011 में 12 थे, 2012 में 231 केस में केवल मात्र 9 केस ऐसे हैं जिसमें जो है महिलाओं को, लड़की को उसका मालूम नहीं था, अनजान थे आरोपी, एक्यूज। और सब लोग हम लोगों ने पढ़ा होगा, अभी पीछे जो डीएन नगर में अंधेरी में हुआ, भाई रेप कर रहा है, कहीं बाप रेप कर रहा है, कितना मतलब ये समाज का क्या हो रही है? जहां जान पहचान के लोग, रिश्तेदार लोग ऐसा काम करते हो, तो घरों में जाकर के पुलिसिंग कैसे करें? मतलब एक इतनी बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है। अगर लोग बोलने लगे कि पुलिस के कारण से बढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग खुद इस पर विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, हम लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारे बच्चों को मालूम नहीं होगा ये आदमी मुझे किस दृष्टि से देखता है। जैसे लोग बोलते हैं, वो मराठी में कहावत है, जैसी जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। तो दृष्टि जब गड़बड़ है, आदमी का देखने का तौर तरीका बदल गया, तो जब तक अपने बच्चों को मालूम नहीं होगा ये मुझे किस दृष्टि से देखता है,
किस प्रकार से मुझे टच करता है। आज मैं अपनी बेटी को भी टच करता है, अपनी बहन से भी मिलता है, लेकिन उसकी मिलने में, उसके टच में बहुत फर्क है। तो ये जब टच का अपने को हम बोलते हैं, उससे पता हमको मालूम नहीं चलता कौन किस उससे देखता है, तब तक हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रह सकते। हम लोग, जो महिलाएं जो हैं समाज के अंदर सुरक्षित नहीं रह सकती। तो उसमें क्या किया जाए? महिलाओं के अधिकारों को अगर हमको उसका रक्षा करना है, उसका संरक्षण करना है, उसके ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स की बात भी छोड़ दीजिए आप, मतलब ह्यूमन राइट्स में कहता हूं कि जितने भी राइट्स हैं सारे ह्यूमन राइट्स के अंदर आते हैं। और उसमें जो है, जब तक समाज के सब लोग मिलकर के, न केवल पुलिस, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर आपको ये आंकड़े दिए हैं, तो ये जो हमारा जो एक मुहिम है, वो मुहिम अपने को शुरुआत करनी पड़ेगी। हमारे अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने स्कूल और कॉलेज में शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को शायद मालूम होगा, ये आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़ा एक चैप्टर लिखा गया। जो लोग आयुर्वेद पढ़ते होंगे, मुझे मालूम नहीं आपके कॉलेज में चेन्नई यूनानी में शायद पढ़ाते होंगे, तो उसके अंदर ये है कि अगर आप अपने घर में ऐसे बच्चे चाहते हो, एकदम संस्कारी बच्चे चाहते हो, ऐसे बच्चे चाहते हो जो सुंदर हो, ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सत्य झूठ नहीं बोलने वाले हों, ऐसे बच्चे चाहते हैं जो सदाचारी हों, ऐसे बच्चे जो माँ बाप का इज्जत करने वाले हों, तो क्या करना चाहिए? इसके ऊपर बहुत लिखा गया, एक बड़ा चैप्टर लिखा गया उसके ऊपर कि उसमें माँ बाप को क्या क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि पहले जमाने के अंदर लोग इस बात पे इतना जोर देते थे कि भाई तुम्हें बच्चे चाहिए तो कैसे बच्चे चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम हर एक चीज की प्लानिंग करते हैं, हर एक चीज की योजना बनाते हैं, लेकिन घर में बच्चे कैसे हों इस बात की योजना नहीं बनाते। हमारे स्कूल और कॉलेज में बच्चे आएंगे, हमारे बच्चे ग्रेजुएट होकर के क्या बने? वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने। क्या हम इस बात की योजना बनाते हैं? कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर इस बात की योजना बनाते हैं? केवल मात्र डिग्रियां देने से, केवल मात्र बच्चों को ग्रेजुएट बनाने से बात नहीं बनेगी। बच्चा अच्छा इंसान बन करके निकले, अच्छा जो है नागरिक बन करके निकले, अपने समाज के लिए कुछ काम करने वाला बनने से, ऐसा कोई काम न करे कि जिससे कॉलेज का नाम, संस्था का नाम जो है बदनाम हो। क्या हम इस बात को सोचते हैं? क्या इस बारे में हम जोर देते हैं? हमारी कोई प्लानिंग है कि नहीं है प्लानिंग? मैं पहले यूजीसी का एक एडवाइजर था किसी कॉलेज के, लड़कियों के कॉलेज में, तो चेन्नई के 2 कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज, इसमें 6-6 हजार लड़कियां पढ़ती है। तो वहां पर बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जितनी लड़कियां यहाँ पर बैठी हैं, कोई लड़की डॉक्टर बनेगी, कोई इंजीनियर बनेगी, कोई टीचर बनेगी, कोई सीए बनेगी, कुछ ना कुछ बनेगी, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। लेकिन जनरली एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, ऑलमोस्ट हर एक लड़की मां बनेगी, हर एक लड़की पत्नी बनेगी। क्या हमारा संस्थाओं का जोर इस है कि हम अपनी लड़कियों को वो अच्छी मां बन सके, इस बात पर क्या हमारा जोर है? क्या हमारी सोच उस तरह जाती है कि हमारी सब लड़कियां अच्छी मां बन सकें? अच्छी मां बनेगी तो आगे आने वाले जो भावी जो जनरेशन होगी वो अच्छी बनेगी। क्या हम लोगों का इस बात पर जोर है? केवल मात्र ग्रेजुएट बनाने से बात नहीं बनेगी। तो मेरे कहने से चेन्नई के कॉलेज ने, चेन्नई के जो लड़कियों का कॉलेज है, एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशन कोर्स चालू किया होगा कि बच्चे, हमारी लड़कियों का कॉलेज है कि अच्छी लड़की बने, वो अच्छी माँ कैसे बन सकती, अच्छी वाइफ कैसे बन सकती है, आगे चल के बच्चों का कैसे ध्यान कर सकती है, उसके लिए क्या क्या सोच होना चाहिए। तो मैं आपको ये कह रहा था, बच्चे, हमारी बच्चियां जो है, लोग बहुत सालों से बात हम सुनते आ रहे हैं, एक लड़के को आपने पढ़ाया, एक आदमी को पढ़ाया, एक लड़की को अगर पढ़ाया तो एक परिवार को पढ़ाया। ये बात हम लोग, हमारी ये सोच है। तो हमारी जो सोच है, मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कॉलेज के जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल्स मैडम है, टीचर्स हैं, कि हमें अपने सिलेबस से बाहर कुछ जाना पड़ेगा। अपने सिलेबस से बाहर अगर हम जाएंगे, सब्जेक्ट से बाहर आप जाएंगे, तो मैं कहानी बहुत सुनाता हूँ, मैं उस कहानी सुना करके मेरा अपनी बात में खत्म करना चाहता हूँ। कुछ होगा फिर आप मेरे से कुछ सवाल, अगर कुछ सवाल जवाब कुछ होना चाहते हैं, उसके लिए मैं समय देता हूँ। हमारे डीसी भी आ गए। ये कई बार ये मैं कहानी सुनाता हूँ, मुझे मालूम नहीं किसी ने पहले सुनी होगी कि नहीं। एक कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर, उसको लंदन जाना था।
आज से कोई 50-60 साल पहले की बात है। उस समय इतने हवाई जहाज नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे। तो लंदन यहाँ पर आया, बॉम्बे में आया, और बॉम्बे से वो शिप में बैठ करके लंदन के लिए रवाना। बड़ा प्रोफेसर था। बड़ा प्रोफेसर का मतलब क्या है आजकल के जमाने में? उसके नाम के पीछे डिग्रियां बहुत लिखी जानी चाहिए कि कार छोटा पड़ जाए, डिग्रियां ज्यादा। तो उसका नाम था, जैसे पैसेंजर लिस्ट बनते हैं, ट्रेन में आप लोग जाते हैं, रिजर्वेशन का चार्ट होता है टीसी के पास, एरोप्लेन में भी पैसेंजर मैनिफेस्टो बोलते हैं, तो ऐसे शिप के अंदर भी पैसेंजर मैनिफेस्टो होता है, कौन कौन ट्रेवल करे। तो शिप पर काम करने वाला एक बूढ़ा सेलर, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, या नाविक कह लीजिए, आप हिंदी उर्दू में क्या बोलेंगे, मल्ला कह लीजिए, बस सही उसका अंग्रेजी में सेलर जिसको बोलते हैं, जो छोटा काम करने वाला एक आदमी, बूढ़ा आदमी। उसको बातचीत में मालूम चला है कि बहुत बड़ा प्रोफेसर है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, वो भी हमारे शिप में आज यात्रा कर रहा है। तो शाम को उसके पास जाता है, बोला सर आपके बारे में बहुत सुना, आप इतने बड़े प्रोफेसर हो, तो आप मुझे कुछ बताइए, अच्छी बात कुछ बताइए। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आदमी पहले अगर अनपढ़ हो तो ही बोलता मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो प्रोफेसर ने उससे पूछा कि छोटी स्टोरी बताता हूँ आपको। उसने पूछा हैव यू स्टडीड जियोलॉजी? बोला सर मुझे तो मालूम है जियोलॉजी का अर्थ क्या होता है, कि मैं जानना चाहता हूँ आपने भूविज्ञान पढ़ा है, पृथ्वी का विज्ञान पढ़ा कि नहीं? कहता नहीं सर मैं तो पढ़ा नहीं, भूविज्ञान नहीं पढ़ा। बोला कि तुझे जमीन पे तू पैदा हुआ, जिस पर तुम बड़ा रहता है, उस जमीन के विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं, इसका मतलब 1/4 तुम्हारी जिंदगी बेकार से। फिर दूसरे दिन सवाल करता है, दूसरे दिन फिर प्रोफेसर पूछता है, कोई बात नहीं ओल्ड मैन, यू हैव नॉट स्टडीड जियोलॉजी बट हैव यू स्टडीड ओशियोनोग्राफी? बोला सर ओशियोनोग्राफी भी समझता नहीं मैं। उसने बोला कि समुद्र का विज्ञान है। तो बोला सर मैं तो कभी कॉलेज गया ही नहीं। बोला भाई तुमने जमीन का विज्ञान नहीं पढ़ा, जिस समुद्र में तुम रात दिन तुम चलते हो, 6-6 महीने चलते रहते हो, सेल करते हो, उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं, इसका मतलब तुम्हारी आधी जिंदगी बेकार से। फिर तीसरे दिन की बात होती, तीसरे दिन फिर सवाल करता है प्रोफेसर, भाई तुमने जियोलॉजी नहीं पढ़ी, ओशियोनोग्राफी नहीं पढ़ी, बट हैव यू स्टडीड मीटरोलॉजी? वो सब नहीं जानता। बोला सर मैं तो स्कूल ही नहीं गया, मेरे माँ बाप की गलती है। अंग्रेजी सीख गया मैं थोड़ा बहुत, सीख में रहता आपको मालूम है भाई। अंग्रेजी आप लंदन में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, जो आदमी बेचारा झाड़ू लगाता है, साफ सफाई करता है, अंग्रेजी तो फ्री बोलता है ना। ऐसा मतलब ये कि अंग्रेजी इसको बोलने जाते हो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो। ये भी हमारे देश में एक दुर्भाग्य से ऐसा होता जा रहा है। जिसको अंग्रेजी नहीं बोलना आता तो बोलते कम पढ़ा लिखा है। मुझे मालूम नहीं थोड़ा भाई अंग्रेजी पेपर वाले थोड़ा क्या समझते हैं, लेकिन जनरली लोगों का मतलब ये बड़ी गलत सोच है हम लोगों की। एक आदमी जो है बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो सकता है बेचारे को भाई मतलब उर्दू का बड़ा विद्वान आदमी है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती हो, या दूसरी भाषा मराठी का हो तो उसको नहीं हो सकता है। तो बोला सर मैं तो अंग्रेजी सीख लिया, 20 साल से शिप पे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पढ़ा लिखा माँ बाप को गाली देने लगा। तो प्रोफेसर ने बोला कि भाई तुमने तो जिस रात दिन हवा पानी जो होता है, गर्मी आएगी, बारिश होगी, तूफान चलेगा, शिप में तुम काम करते हो, तुम्हें इस बात के बारे में कुछ मालूम नहीं, जमीन के बारे में कुछ नहीं, इसका मतलब 3/4 तुम्हारी जिंदगी बेकार है। बेचारा बहुत परेशान है।